प्रीमियम लर्निंग का ऐसा है कि अब आप आए हो तो आपको कुछ लेके जाना ही है, आप खाली हाथ नहीं जा सकते। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रहा है यहाँ पे कि ट्यूशंस ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत है, बट ये प्रीमियम लर्निंग का एक है कि आप आए हो तो आपको लेके जाना ही है, आप आप खाली हमारे हाथ नहीं पास, जा सकते। यस यस, आप हमारे पास आए हैं तो हम आपको कुछ अच्छा दे के ही जाएंगे। दैट्स ग्रेट, हाँ। दैट्स ग्रेट, राइट। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hey everyone, this is Pooja from Premium Learning Systems, and I welcome you all to the series Aspirers to Inspirers, in which we share success stories of our students, which can be inspirational to everyone who wants to enter into the IT field and watching us right now. So, the story of today's guest is really inspirational. It is inspirational for the fact that her career took 360-degree change. A successful 360-degree turn, I would say, because she completed her diploma in mechanical, then she graduated as a mechanical engineer, she started her first job in the field of mechanical, and also she switched to mechanical fields job again. After that, she had a date with destiny. She decided to switch her career into Salesforce, and she started that with Premium Learning Systems, and she completed that successfully by being a successful working IT professional. Her name is Vaishnavi Kulthe, and it's been 2 months she's working as a Salesforce developer in a renowned IT company. Vaishnavi, we are extremely glad, we are extremely proud of your success, and we are glad that we could be part of your journey. So first of all, we welcome you wholeheartedly to this session. Thank you. Thank you. तो वैष्णवी, सबसे पहला सवाल, can you tell us कि आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन किए हो and what is your profile there? अभी मैं इटर्नस में हूँ, इटर्नस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, और मेरा डेजिग्नेशन है सेल्सफोर्स डेवलपर. Great. So Vaishnavi, your success is really inspirational. So we are going to have a long chat, ekdam detailed, open-ended questions I have for you. But first of all, I'd like to start with a rapid fire round. Okay, the reason behind this round is that the answers would be very short, like in 1 word or 2 words, right? They'll completely give the essence of your journey to the viewers. Okay, so the very first question that I have is, what was the biggest obstacle? आपकी journey towards IT Salesforce में सबसे बड़ा obstacle क्या था? ऑब्स्टेकल ये था कि डिसीजन लेना सबसे, क्योंकि मेरा पूरा करियर एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड रहा है. Correct, और उससे आईटी में स्विच करना, वो डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट वो इजी किया सर के लेक्चर्स ने. जो मैंने लेक्चर्स पहले डेमो लेक्चर्स अटेंड किए तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और वो उससे ही मेरा सब इजी हो गया कि अभी यही करना है. Great. We would like to talk about it in detail in upcoming questions. Okay, in this rapid fire round, the second question that I have for you, what was your biggest strength in this journey, in this successful journey, I would say? आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, क्वालिटी जिसने आपको हेल्प किया इन दिस जर्नी? नेवर गिव अप. Great. Yes, it must have been difficult for you, more difficult for you because you're from non-IT background, but you did not give up. Great. एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो इस जर्नी के दौरान आपकी क्लियर हुई? एनीवन कैन डू एनीथिंग. ये जो होता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि समझना कि हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप में कंसिस्टेंसी है. आप दे रहे हो उतना टाइम वो चीज सीखने के लिए, तो वो है कि आप कर सकते हो. बिल्कुल. If you decide, you can do it. Yes. Great. एक आइडिया या एक इवेंट, एक एडवाइस, एक डिसीजन जिसने आपका डायरेक्शन चेंज कर दिया आपकी जर्नी का? मुझे मतलब मेरा आईटी में आना कोई ऐसा डिसाइड नहीं था, तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, मैंने वो देखा, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैंने सर से इंस्पायर हूँ मैं, कि उन्होंने बोला कि ये करो,
ये कोई भी कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा मेरे लिए। आपकी इस जर्नी में आपको सबसे बड़ा सपोर्ट किसका था, वेदर इट बी पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली, कलीग, कोई भी, किसका सपोर्ट सबसे बड़ा था? वन ऑफ माय फ्रेंड और मेरी फैमिली की, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। ग्रेट। एक चीज जो आपको इस जर्नी के दौरान पता चली कि इज अ की टू प्रोफेशनल सक्सेस, मतलब अगर आपको प्रोफेशनली सक्सीड होना है तो ये क्वालिटी आप में चाहिए ही चाहिए, ये स्किल आपको आना ही चाहिए। स्किल तो हम सीख सकते हैं, मतलब अगर कुछ सीखना है, टेक्नोलॉजी हो या फिर कुछ, आपको कंसिस्टेंट रहना है और डिटर्मिनेंट रहना है टुवर्ड्स द वो जो पर्टिकुलर थिंग है जो आपको चाहिए उसके लिए। अच्छा, वो No, it's been 2 months you're working, right, in IT as an IT professional. So of course, a lot of things must have changed. But I would like to know that one thing which has changed after you got this job. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो एक्सपेक्ट नहीं था वो अनएक्सपेक्टेडली हो गया सब कुछ। तो उसमें सारी चीज़ें चेंज हो गई, मतलब मैं एक मैकेनिकल में थी और आईटी में, तो वो जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो सब चेंज हो गया। एक न्यू एक्सपीरियंस मुझे मिला। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इन दिस राउंड, एक चीज जो आपको प्रीमियम लर्निंग सिस्टम्स के बारे में सबसे अच्छी लगी, मतलब यहाँ पे 2 भी बता सकते हो। वो सिखाने की टेक्निक जो है, और प्रीमियम लर्निंग का ऐसा है कि अब आप आए हो तो आपको कुछ लेके जाना ही है, आप खाली हाथ नहीं जा सकते। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रहा है यहाँ पे कि ट्यूशंस, ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत है, बट ये प्रीमियम लर्निंग का एक है कि आप आए हो तो आपको लेके जाना ही है, आप खाली हाथ नहीं जा सकते। आप हमारे पास आए हैं तो हम आपको कुछ अच्छा दे के ही जाएंगे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, राइट। Thank you. You've been wonderful interviewee, वैष्णवी। तो वैष्णवी, अब इस रैपिड फायर राउंड के बाद चलते हैं हमारे डिटेल डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले आप हमें आपकी जर्नी के बारे में बताइए। कैसी थी जर्नी? हाउ यू स्टार्टेड, देन हाउ यू entered into this field, how you continued and how you got successful. I have completed my graduation in mechanical at 2019. उसके बाद मैंने मैकेनिकल डिजाइन के कोर्सेज किए। तो उसके बाद मैंने एज अ मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर की जॉब की। तो फिर सब कुछ अच्छा था, तो लॉकडाउन हुआ, तो वो वर्क फ्रॉम होम तो देते हैं नहीं, तो उसके बाद वो तो टाइम ऐसे ही चला गया। फिर सेकेंड टाइम मैंने जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो मैंने फिर से मैकेनिकल में ही जॉब किया, वही था डिजाइन इंजीनियर का। तो फिर से लॉकडाउन हुआ, तो ये सिचुएशन रिपीट हो गई मेरे साथ। और मेरा आईटी में जाना ये ऐसा कोई फिक्स नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था, और मुझे जाना भी नहीं था कि अभी आईटी में जॉब करना है या फिर उसमें कुछ करना है। तो मेरा टाइम तो वेस्ट हो रहा था, क्योंकि जॉब नहीं थी और वैकेंसीज भी नहीं ओपन हो रही थी लॉकडाउन की वजह से। तो फिर मेरा फ्रेंड्स है जो आईटी में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे वो सेल्सफोर्स का सजेस्ट किया। सेल्सफोर्स तो मैं कुछ जानती भी नहीं थी, और फिर मैंने वो जो प्रीमियम लर्निंग है वो भी उसने ही सजेस्ट किया कि देखो उनके डेमो लेक्चर्स होते हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो करो, वरना ठीक है। तो वो एक मेजर डिसीजन लेना था, क्योंकि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड, मैकेनिकल, और ऐसे नहीं कि मैंने सोचा था कभी आईटी में जाना। तो फिर सर मैंने थोड़ी इंक्वायरी की, तो मुझे डेमो लेक्चर्स मिले। डेमो लेक्चर्स अटेंड करने के बाद मुझे क्लैरिटी मिली कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। तो मुझे प्रीमियम लर्निंग की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ऐसे सडनली नहीं डिसाइड करना है। मतलब अगर आप किसी भी और इंस्टीट्यूट में जाओगे, बहुत सारे सेल्सफोर्स के इंस्टीट्यूट है, तो आपको फीस भरनी पड़ेगी, फिर पूरा आपका कोर्स कंप्लीट होगा।
तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको अगर ये पता चलेगा कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। वो एक आपका टाइम जाता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। बट यहाँ पे कैसा है कि आप एक सेल्फ एनालाइजेशन आपको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल कि आप पहले देखो आपको आप करना है नहीं करना है। आपको कोर्स की एक डिटेल इंफॉर्मेशन एक वीक में मिल जाती है कि आपको क्या करना है, कैसे होगा सब कुछ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर जैसे पढ़ाते हैं वो बहुत सही तरीका है, आपको डाउट्स ही नहीं आते। सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि सारी बातें क्लियर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आपके डाउट्स एंटिसिपेट करके वो क्लियर ही कर देते पहले ही, आई गेस। हाँ, क्लियर ही कर देते। तो फिर मैंने कोर्स डेमो लेक्चर्स के बाद सडनली कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। ओके। तो मैंने सिर्फ सर के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, वो जो जो बताते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं, मैंने बस वही किया। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़े, क्योंकि सारे सेशंस मैंने अटेंड किए, सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, असाइनमेंट वगैरह सब। तो वो एक अच्छा रहा मेरे लिए कि मुझे से वो कोर्स सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आई। और फिर प्लेसमेंट के दौरान मेरी प्लेसमेंट भी हो गई। अच्छा, ये प्लेसमेंट का कॉल आपको प्रीमियम से ही आया था? प्रीमियम लर्निंग से आया था? ओके ओके, ग्रेट। या आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो फिर ज्यादा मतलब एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप फ्लो में जाते हो, सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो। मुझे अभी भी याद है, मेरा एग्जाम था, इंस्टीट्यूट का ही था। तो मेरी गलती की वजह से मेरा पेपर लेट सबमिट हुआ। मेरा टेक्निकल इश्यू था, और मतलब एक 10 मिनट 5 मिनट लेट हो तो कोई अंडरस्टैंड करेगा, बट मैंने आधा घंटा लेट पेपर सबमिट किया था मेरे टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो और सर ने पहले ही बताया था कि अगर आप पेपर लेट सबमिट करोगे तो चेक नहीं होगा। फिर मुझे कॉल आया था कि पेपर लेट सबमिट किया, तो उस टाइम मुझे लगा कि अभी नहीं मेरा पेपर चेक नहीं होगा तो मैं प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठ पाऊंगी। बट हमसे ज्यादा सर को चिंता हमारे जॉब की। सर ने मेरा पेपर चेक किया, फिर मैं सिलेक्ट हुई उस पेपर में, और फिर मुझे प्लेसमेंट मिली। मतलब आप कुछ करो ना करो, सर आपके लिए बहुत कुछ कर देते हैं। एक सही बात है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम अगर नहीं होता तो मैं प्लेसमेंट के लिए बैठ ही नहीं पाती। True that. आपका रीजन जेन्युइन था, आपकी कोशिश पूरी थी, सिर्फ थोड़ा टेक्निकल इशू था। सो इन दैट केस आई गेस योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट वाज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? आपकी कोशिश सही थी, जेन्युइन थी, सो ऑफ कोर्स सो यू डिजर्व्ड इट बेसिकली। ग्रेट। तो आपने दोस्त से सुना, आपने सोचा कि हम ट्राई करते हैं, then you attended demo lectures, you completely understood that, you felt कि आप cope up कर सकते हो, then you immediately enrolled, right? And then you started your journey with Premium Learning Systems. तो जैसे I can completely understand, I can completely sense that you are extremely impressed by sir style of teaching, and he's क्या कहते हैं, उनका जो एकदम core से आता है स्टूडेंट्स के लिए, राइट? उससे आप इम्प्रेस्ड हो। व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क टू यू इज, आपने एक कहीं और देखा था कोर्सेज के लिए? नहीं, मैंने देखा ही नहीं। फिर मैंने देखा ही नहीं, सच में नहीं देखा। ओके, ग्रेट। तो जो आपने कहा कि सर का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स हीज ट्रेनीज, इसके अलावा प्रीमियम लर्निंग सिस्टम्स के कैप कोर्स के बारे में स्पेसिफिकली आपको क्या अच्छा लगा? मतलब being from non-IT background, being from non coding background completely, तो आपने cope up कैसे किया? क्योंकि Salesforce must have been completely new to you, right? So how did you go ahead with that? मैंने मतलब सर का जो कैप प्रोग्राम है, तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपको एक बेसिक से छोटे डिटेल्स में आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है।
तो अगर मतलब जो भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से जिन्होंने कोडिंग वगैरह नहीं की है, तो अगर आप वो टाइम टू टाइम लेक्चर्स अटेंड करते हो और वो जो उनका कोर्स है वो अच्छे से करते हो, तो आपको कुछ हार्ड नहीं जाएगा। ओके आप एक अच्छी जर्नी होती है आपकी वो आईटी के प्रोफेशन की तरफ, क्योंकि बहुत इजी तरीके से वो समझाते हैं और किसी को नहीं लगेगा कि ये न्यू है आपके लिए, बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा। Great to know that. I asked this question specifically to you क्योंकि वैष्णवी, a lot of people have got this fear कि मुझे कोडिंग नहीं आती है, मैं कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कोडिंग से भी है, मतलब आईटी बैकग्राउंड से भी है, but when they are scared of coding, they just don't dare to enter into this field. So you are a great example. You're a great example for all of them. तो वैष्णवी, जैसे आपने कहा that you completely followed his instructions, you took baby steps, Yes. and then step by step you completely followed and completed your journey successfully. During this journey, आपका खुद का रूटीन कैसे रहा? How did you manage all of that? आपने पढ़ाई कैसे की, कैसे हुआ ये सब? What was your routine? जैसे आपने कहा कि वो कोडिंग का फियर, तो वो पहले मुझे भी था कि आएगा या नहीं, क्योंकि मेरा तो था ही नहीं कुछ कोडिंग रिलेटेड। तो मेरी क्लास 6 बजे रहती थी Okay. शाम, तो मैं उससे पहले थोड़ा पढ़ती थी और उसके बाद में थोड़ा। तो मैंने सर जैसे बताते थे ना कि आज आपको ये ऐसे ऐसे करना है, तो मैं बस वही करती थी, मैंने ऐसे ज्यादा कुछ किया नहीं। तो मतलब आपको ऐसे नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है तो आपको बहुत 11-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं। आप थोड़ा टाइम पढ़ो, बट वो एक क्लियर करो, जो भी पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसे कुछ हार्ड होता नहीं है, अगर आप पूरे कंसिस्टेंसी से करते हो तो वो कुछ हार्ड नहीं होता है। बिल्कुल। तो राइट, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, परसिवियरेंस होना चाहिए, तो कोई चीज हार्ड नहीं है उसके बाद, राइट। सो जैसे आपने कहा वैष्णवी कि पहला जॉब लॉकडाउन की वजह से स्टॉप हो गया, दूसरे जॉब के भी साथ सेम ट्रेजेडी हो गई, तो ये 2 बार जब हुआ एंड यू हैड लॉट ऑफ टाइम एंड यू डिड नॉट हैव जॉब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, सो हाउ डिड यू हैंडल दैट प्रेशर? देयर मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ प्रेशर, राइट? तो तब आपका मेंटल स्टेट कैसे था? फिर अपने आप को आपने कैसे मोटिवेट किया? वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब अभी तो एक था सिचुएशन खराब थी, बट ऐसे टाइम बहुत लोगों के साथ आते हैं जहाँ पे वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं या फिर उनको पता है कि वो अच्छे से कर रहे हैं, बट फिर भी फेलियर आता है। वो रीजन पता नहीं चलता है उसका। आप कहीं पे तो कम रहते होंगे शायद, बट एक आपको अगर आपकी गलती, आपके मिस्टेक्स आपको पता चले तो आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। बट मेरे टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी कि कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जब आप फेल होते हो किसी चीज में या फिर आपको कुछ मिलता नहीं है, सक्सेस नहीं मिलती है, तो हर कोई आके आपको अलग अलग सजेशंस देता है कि आप यहाँ ट्राई करो, आप वहाँ ट्राई करो। सब चीजें अच्छी होती है, बट हम किस में फिट होते हैं ये हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, क्योंकि हम सब चीजें तो एक साथ कर नहीं सकते, वो एक डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट एक होता है कि नहीं, हमको ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मुझे मेरी फैमिली ने बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया कि अभी तुमको जॉब करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई की जर्नी है वो मेरी विदाउट एनी गैप ऐसे अच्छे से हुई है। मैं ऐसा नहीं कि गैप है कि मार्क्स कम आए हैं, वो सब एकदम फ्लो में था। फिर अचानक ये लॉकडाउन की वजह से मेरी जॉब का प्रॉब्लम हुआ, तो उस टाइम मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो, कुछ नहीं, टाइम है, निकल जाएगा, आएगी और भी अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो वो टाइम मुझे उन लोगों ने बहुत हेल्प की। You completed your studies with flying colors, और बीच में फिर ये थोड़ा एक डिप्रेसिंग काइंड ऑफ फेज आ गया because of COVID, but then you took the leap of faith
and then you geared your career up again with Salesforce, right, Vaishnavi? Yes. Great. Yes. Actually, all that is needed is to keep yourself motivated. That's it. है ना? जब तक courage है तो कोई चीज difficult नहीं है, right? So great. तो this was the journey. You said a lot of people keep suggesting you a lot of things. Yes. And all of that, right? Then you, among all of those suggestions, you decided to enter into Salesforce. You completed your journey. You're completely successful now. Now, how does it feel? Yes, it's like a dream come true. क्योंकि मुझे एक अच्छी पोजीशन की अच्छी जॉब मिली है. मेरे फैमिली मेंबर्स भी बहुत खुश है क्योंकि इतने सब ट्रेजेडी के बाद कुछ अच्छा हुआ है. और एक होता है कि एक आपको अंदर से ही एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है कि बिल्कुल आपने मतलब मैंने कोर्स किया और एक उसी पे अच्छे डेजिग्नेशन की जॉब लग गई. तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है मेरे लिए. आपका कॉन्फिडेंस अभी दुगना हो गया होगा, राइट वैष्णवी? यस. एंड आई थिंक ये जो बीच में जॉब का गैप हुआ, ये जो थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेज था कोविड की वजह से जो हुआ, that actually was a blessing in disguise for you, है ना? वो आपके लिए कुछ अच्छा ही लेके आया, बहुत कुछ अच्छा लेके आया. वैष्णवी, अपने आप में क्या चेंज फील करते हो अभी आप? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि हम कुछ सीखते हैं तो जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक होता है ना कि ये आएगा या नहीं आएगा, हम इंटरव्यू को कैसे फेस करें. ये फियर मुझ में था कहीं ना कहीं, बट अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आया है अभी कि मैं कोई भी इंटरव्यूज या ये अच्छे से क्रैक कर सकती हूँ. क्योंकि आपको स्किल्स कितनी है इससे इम्पोर्टेंट है आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो. ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये बात मुझे प्रीमियम लर्निंग से ही मिली है क्योंकि सर हमेशा बोलते कि आप बस बता दो, कुछ करना है नहीं, आना है नहीं आता है वो बाद में, आप बताओ, सिर्फ आप एक्सप्लेन करो. और उन्होंने जो इंटरव्यूज के लिए ट्रिक्स या कुछ क्वेश्चंस बताए थे तो वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किए. तो आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा आपको आता ही है वहाँ पे. तो वो एक राइट, प्लीज गो अहेड. नहीं, ओके. तो सर की कही हुई बहुत सारी बातें आपको याद आती है, राइट वैष्णवी? जी. एक आध बात आप और बता सकते हैं हमको जो सर ने कहा और आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया? सर हमेशा बोलते मैं सबको डांटता हूँ बट जिन लोगों को मैं डांटता हूँ उनका सब अच्छा ही होता है. तो आपने खाई मुझे डांट? लगता है कि हाँ मैंने खाई है एक बार. अभी वो पेपर के टाइम तो बहुत खाई है मैंने डांट. But that helped you change your career to completely different angle. Great. So Vaishnavi, it was great talking to you. Your story is really inspirational. Your story is an example of anything is possible. Anything is possible. Yes. If you determined for the same, right? So at the end of this interview, what I would like to ask you is कि आप कोई एक मैसेज देना चाहोगे to everyone who is watching you right now and they're looking up to you, for a great message, for some inspiration? मैं यही कहना चाहूंगी, अगर मतलब आप कुछ करना चाहते हो तो आप उसमें एफर्ट्स डालो, कंसिस्टेंट रहो और करते रहो. फेलियर आए सक्सेस आए ये तो आगे की बात है, बट अगर आप करोगे नहीं तो आपको सक्सेस या फेलियर कुछ भी नहीं पता चलेगा. तो आपको बस करना है और पूरी लगन से, डिटर्मिनेशन से करना है. बिल्कुल. If you decide, nothing is impossible, right? Impossible. बिल्कुल. Impossible itself says I am possible. You just need to, feel that, understand that. Yes. Great. Thank you very much, Vaishnavi. It was great talking to you. Thank you, ma'am.